یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبدالمنان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم اپنے اس کورس کا جس کا آغاز کیا مسیحی قیادت میں نشو و نما، آج اس کے دوسرے چیپٹر کا آغاز کرنے کو ہے، اور اس چیپٹر میں ہم مسیحی قیادت کی تیاری کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوٹینشیل لیڈرز اور ایمانداروں، اس بات کا ہم پر ادراک ہونا ضروری ہے کہ جب خداوند خدا کسی کو بلاتا ہے تو بلاوے کے بعد ایک خاص ایریا، خاص پہلو وہ تیاری کا ہے، اور اگر ہم بلائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں تو ہم فوراً اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ اس کے درمیان میں ایک پیریڈ جو بلیورز کی زندگی کے اندر یا لیڈرز کی زندگی کے اندر آئے گا وہ ہے تیاری کا عرصہ، اور اس تیاری میں بہت اہم ہے کہ ہم اس تیاری کو پورے طور پہ سمجھے کہ ایک قائد کو یا ایک مسیحی رہنما کو جب تیار ہونا ہے تو اس کو کس طرح سے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ خداوند خدا اگر آپ کو بلاتا ہے تو خداوند کی ڈیزائر یہ ہے کہ آپ پھلدار ہوں، اور پھلدار ہونے کے لیے جس طرح سے ایک زمین کو تیار کرنے کے لیے اور زمین میں سے پھل لینے کے لیے اس سے پہلے ایک تیاری کا پیریڈ ہے، اسی طرح سے ہماری قیادت کے پروسیس میں، ہماری قیادت کے عمل میں یا اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہمیں ایک تیاری کی، اور یہ تیاری جو ہے وہ رسمی اور غیر رسمی دونوں بنیادوں پر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم قیادت سے پہلے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں حصے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی ایک حصہ جس میں ہم رسمی تیاری کرتے ہیں، یعنی اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اور دوسرا اپوائنٹمنٹ کے بعد دورانے جو ساری خدمت ہے اس کے درمیان بھی ہماری زندگی کے اندر تیاری ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ تیاری ایک قربانی مانگتی ہے، تیاری کی ایک قیمت ہے، اور جو شخص جو خواہ وہ بلایا بھی کیا ہو، اگر وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قربانی کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے بلاوے کو کہیں بھی ضائع کر سکتا ہے، اپنے بلاوے کو کہیں بھی بے پھل کر سکتا ہے، اور کہیں بھی وہ اپنے بلاوے کو غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ اور اس تیاری میں آپ کو بہت ساری قربانیاں، اور ان میں پہلی قربانی ہمیں اپنی جسم کی خواہشوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہم جسم کی خواہشوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس تیاری کے پروسیس میں اگر ہم خود کو سیرنڈر نہیں کرتے، اگر ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، تو ہمارے لیے ایک قائد کے طور پہ تیار ہونا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تیاری میں آپ کو اپنا وقت دینا ہے، آپ کو اپنی انرجی دینی ہے، آپ کو اپنی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آپ کی اویلیبلٹی جو ہے خداوند خدا کو درکار ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت دفعہ بہت سارے لوگ اس بات پہ ہی ساری عمر خوش رہتے ہیں کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، لیکن بلاوے کے بعد تیاری کے پروسیس میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم قیادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی خواہشوں، دنیا کی علائشوں سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ قربانی بھی جو ہے وہ قیادت کی تیاری میں ہمیں چاہیے۔ اور پھر ہمیں یاد رکھنا ہے، بہت دفعہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر روپے پیسے
से इनकार करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से इनकार करना पड़ेगा, हमें अपने रिलेशंस में बहुत सारे एरिया में बहुत सारे रिलेशन से इनकार करना पड़ेगा, ताकि हम उस बर्तन के तौर पे, जिसका हमने इस मरकजी हवाले में जिक्र देखा कि वी नीड टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, हमें अपने आप को दुनिया से अलग करने की जरूरत है और बहुत सारी कुर्बानियां हैं जो हमें इस ज़मन में देनी पड़ेंगी। और फिर बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर हम इसको भी समझ पाएं कि क़यादत से पहले, यानी उसकी जो है तकर्री से पहले जो है तरबियत का एक पीरियड लाजम है, जिसके लिए कलाम मुकद्दस कहता है। आइए एक हवाला हम देखते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, दूसरा तिमोथियुस दूसरा बाब दूसरी आयत में लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। इट मीन्स कलाम मुकद्दस इस बात के लिए एक कंडीशन रखता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी के अंदर बतौर कायद लोगों को सिखाना है, बतौर कायद जो है वो लोगों तक मसीह की पूरी पहचान को लेके जाना है, तो बहुत अहम है, बहुत लाजम है कि वो पहचान पहले हमें हो। और लिखा है उसके लिए जो मेरिट पौलुस रसूल तिमोथियुस को बताते हैं कि नंबर 1, ही और शी मस्ट बी ऑनेस्ट, वो दयानतदार लोग हों, यानी उनकी जिंदगी के अंदर सिखाने के ताल्लुक से, तरबियत पाने के ताल्लुक से, सीखने के ताल्लुक से, तैयारी के ताल्लुक से जो है वो किसी किस्म की बददियानती ना हो। और फिर जो कुछ सीखा है दयानतदार हो, और फिर ऐसे हो जो सीखे हुए हों, ताकि जब सिखाएं तो मसीह के कलाम को, मसीह की तालीम को, मसीह की जात की पहचान को वो प्रॉपर तरीके से जो है वो दूसरों तक लेके जाए, और उनकी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस की सीखी गई वो रियलिटीज और वो ट्रूथ्स जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, उनको वो दूसरों को सिखा सके। फिर इस तैयारी के प्रोसेस में हमें जिस बात को समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को खुदावन के हाथों में देना है, खुदावन के सुपुर्द करना है, क्योंकि जब तक हमारे बहुत सारे लोग कायद बनना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ बनना नहीं चाहते, बने हुए हैं, बट दे डोंट वांट टू गिव हिम और हरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। वो खुदावन के हाथों में जो है वो देना नहीं चाहते, क्योंकि किताब मुकद्दस क्या कहती है, अगर हम गौर करें यशायाह नबी का सहीफा उसका 64वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। बहुत जरूरी है कि हम जो उसकी दस्तकारी हैं, इस क़यादत से पहले, काम करने से पहले, खिदमत करने से पहले अपने आप को खुदावन के हाथों में दें। और अगर हम अपने कुम्हार के हाथों में नहीं देते, जिसने हमें इस लायक, इस बर्तन को जो है इस लायक करना है कि वो खुदावन के काम के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि खुदावन का पैटर्न क्या है, खुदावन सबसे पहले जब किसी को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसको अपने हाथों में लेना चाहता है और हाथों में लेकर उसको बनाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग खुदावन के हाथों में आना नहीं चाहते, खुदावन के हाथों में खुद को देना नहीं चाहते, और इट मीन्स यानी वो अपने आप को तैयारी के लिए पेश नहीं करते। वो हमें लेता है, हमें बनाता है, और फिर हमें हालात में डाल कर जो है वो ड्राई करता है, एंड देन यहां बात खत्म नहीं होती, फिर एक टाइम आता है जब वो हमें आग में झोंकता है, ताकि हम एक ऐसे पुख्ता बर्तन के तौर पे जो है वो तैयार हो सके। इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, ये तैयारी का प्रोसेस है खुदावन का। वो अपने हाथों में लेगा, वो हमें बनाएगा, फिर वो हमें जो है वो ड्राई करके आग में से गुजारेगा, ताकि हम पूरे तौर पे तैयार हों। और
एक रहनुमा को ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मसीही क़यादत जो है वो एक सिंपल बात नहीं है, हमें इसमें तैयार होना है। और फिर वन मोर थिंग, हमें अपनी जिंदगी के अंदर जब हम खिदमत के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें पूरे तौर पे अपने खुदावंद पे भरोसा करना है कि इफ ही इज मेकिंग अस, तो वो हमें उस तरह से बनाएगा जिस तरह की खिदमत वो हमारी जिंदगी से लेना चाहता है। खुदावंद के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें वो हमें तैयार करता है, और उन्हीं तरीकों में से जो है वो एक तरीका खुदावंद के तैयार करने का, वो हमें आजमाइशों में से गुजारता है। और इस वीडियो के अंदर, इस सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो हम इस बात को भी देखेंगे कि इन आजमाइशों का हमारी जिंदगी के अंदर किरदार क्या है और क्या रोल वो हमें तैयार करने में अदा करती है। बहुत सारे लोग आजमाइशों से डर जाते हैं, मुसीबतों से डर जाते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना कि ये सब कुछ हमारी तैयारी के लिए अहम है। और हमें याद रखना है कि खुदावंद अपनी बादशाही में हर रहनुमा को परखता है, आजमाता है, और अगर वो परखता नहीं है, टेस्ट नहीं करता और इस इन टेस्टिंग्स में से नहीं गुजारता, इन आजमाइशों में से नहीं गुजारता, वो हमें इस्तेमाल भी नहीं करेगा। पहले वो बनाता है और फिर हमारे लिए उन आजमाइशों के वसीला से जो है हमें चेक करता है कि हम किस लेवल पे है। आइए एक हवाला देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। आगे गौर से सुनने की जरूरत है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हमारा आजमाइशों में पड़ना जरूर है, हमारा आजमाइशों में से गुजरना जरूर है, क्योंकि इन आजमाइशों के वसीला से खुदा हमें तैयार करता है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है कि वो हमारी आजमाइशों में, हमारी टेस्टिंग्स में से वो हमें गुजार कर जो है, जब वो गुजार रहा है तो उसका हाथ हमारे हाथ में है, वो हमारे साथ है, और कलाम कहता है कि वो हमें निकलने की राह भी बताएगा। इसलिए आजमाइशों से घबराना नहीं है, आजमाइशों से डरना नहीं है, ये हमारी तैयारी के लिए है। और सेकंड थिंग, ये आजमाइश एक रहनुमा को सिखाती है और उसकी मदद करती है कि किस तरह कलाम पर कायम रहना, ये कायम रहना भी सिखाती हैं। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है, एक कहानी जो अक्सर मैं चर्च में जो है कई बार सुना चुका हूं। एक अप्रैल फूल वाले दिन, यानी 1 अप्रैल को किसी दोस्त ने अपने एक दोस्त को जो है वो एक गिफ्ट दिया, और उसने क्या किया, उसने एक मेडिकैम के जंबो पैक के अंदर जो है खाली था, उसके अंदर जो है वो उसने जो गारा है, नाली का गारा, उसको अच्छी तरह से भर दिया। फिर उसको जो है वो कैप लगा के उसको अच्छी तरह से रैप करके जो है कि अपने एक दोस्त को गिफ्ट किया। और जब गिफ्ट किया तो वो दोस्त बड़ा खुश हुआ, और जब वो खुश हुआ तो अगले दिन जब उसको यूज करने लगा, और जैसे ही उसने जो है वो उस ट्यूब को इस्तेमाल करने के लिए दबाया तो अंदर से वो गार बरामद हुई। याद रखना है, हमारा ईमान जब तक दबाया नहीं जाता, जब तक हम आजमाइश में से नहीं गुजरते, हम सही तौर पे चेक भी नहीं होते कि हम किस तरह के हैं। क्योंकि खुशी में, शादमानी में, बरकतों में सब ईमान का दावा करते हैं, लेकिन जब परखे जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हम कितने ईमानदार हैं। और ये परखना तैयारी के प्रोसेस के लिए बहुत लाजम है, क्योंकि जब तक हम पूरे तौर पे जो है इन प्रेशर्स में से, इन आजमाइशों में से नहीं गुजरते, हम तैयारी में जो है वो नाकस जो है वो रह जाते हैं। एक वन मोर थिंग, ये आजमाइशें जो है वो हमें एक क्वालिटी और एक जेन्युइननेस जो है वो भी हमारे अंदर से शो करती है कि क्या हम
अपने खुदावंद के काबिल हो चुके हैं या अपने खुदावंद के काम के लिए पूरे तौर पे जो है वो जेन्युइन है, प्योर है। और ये आजमाइशें हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि खुशहाल हैं, बरकतें हैं, जो है वो सब कुछ मिल रहा है, वहां इस बात को जो है वो चेक करना मुश्किल है। लेकिन अगर प्रेशर है, दबाव है, आजमाइशें हैं, उसमें पता चलता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी जेन्युइननेस क्या है। फिर एक और बात जिसका हमें समझना जरूर है कि खुदा पर ईमान रखना और खुदा पर इन्हिसार करना भी ये प्रेशर और आजमाइशें हमें सिखाती है। एक हवाला हम देखते हैं, पहला पत्रस का पहला बाब उसकी 6 और 7 आयत के अंदर लिखा है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे इन चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है, गौर करना है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, इसका मतलब है ईमान आजमाया जाता है, ईमान जो है वो परखा जाता है। तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। और ये उस वक्त होगा जब हम आजमाए जाएंगे, जब हम परखे जाएंगे, जब हम आजमाइशों से गुजरेंगे। याद रखना है ईमानदारों, हमें अपनी तैयारी में इस टूल को जो है खुदावंद की तरफ से एक ब्लेसिंग के तौर पे, एक बरकत के तौर पे राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान जो है आप पहाड़ी आवाज में कर दिया कि मेरे सबब से तुम सताए जाओगे, और ये सताया जाना है, ये हमारी परख है। हमें चेक किया जाता है कि हम अपनी मुश्किल के वक्त में बरकतें नहीं हैं, उस वक्त में कितने जो है वो खुदावंद के साथ या खुदावंद के काम के लिए खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा चर्चिस के अंदर थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लोग चर्चिस से भाग जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स, ऐसे लीडर्स भी मैंने अपनी खिदमत के अंदर तजर्बा किया है, जिन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की, लेकिन जैसे ही प्रेशर हुआ, जैसे ही मुसीबत आई, जैसे ही परेशानी आई, वो किसी तरह की भी हो सकती है, उसमें खिदमत को खैर बात कह के और काम करना शुरू किया। लेकिन ये आजमाइशें हमारी तैयारी का हिस्सा हैं। फिर ये आजमाइशें जो है वो हमें रूहानी तौर पे खालस बनाती हैं, और ये हम पर जाहिर करती हैं व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, क्या सच है क्या झूठ है, और सच और झूठ के अंदर हमें तमीज करना भी सिखाती हैं। फिर यही आजमाइशें जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे बातनी रवैयों की तब्दीली का बायस भी बनती है, और खुदावंद के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि एक ईमानदार जो रहनुमा के तौर पे इस्तेमाल होना चाहता है, वो एक नई इंसानियत को रिसीव करे, एक नए मिजाज को जो मसीह के मिजाज से मिलता हो। और खुदावंद इस तैयारी के प्रोसेस में इन आजमाइशों के वसीला से हमारे मिजाज पर, हमारे बातनी रवैयों पर भी काम करता है। और फिर यही आजमाइशें जो हैं हमारी कायलियत के लिए हमारे मुहर्रकात को दुरुस्त करती है। इसको समझना है जरा, क्योंकि कई दफा हम खिदमत के लिए जब कायल होते हैं तो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ मुहर्रकात होते हैं, यानी वो बातें जो हमें धक्का लगाती हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री करनी है क्योंकि उनको पैसे चाहिए, कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री करनी है उनको इज्जत चाहिए, कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री करनी है क्योंकि उनको पसंद है लोग उनकी तारीफ करें। अगर कोई मिनिस्ट्री, अगर कोई खिदमत, अगर कोई रहनुमा इस वजह से बना है तो ये गलत मुहर्रकात है खिदमत करने के लिए। आजमाइशें हमारे अंदर जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसे मुहर्रकात के लिए जो है वो हमें कायल करती हैं जो दुरुस्त है, अकॉर्डिंग टू बाइबल है, और बहुत अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि हमारी खिदमत करने के मुहर्रकात जो है वो दुरुस्त हों।
फिर हमारी ये आजमाइशें जो हैं वो हमारी कमजोरी और हमारी जो हदें हैं वो उससे हमें वो नजर आती हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी लिमिटेशन क्या है। क्योंकि कई दफा जब हम आजमाइशों में से गुजरते हैं या आजमाइशों का सामना करते हैं तो हमारी कमजोरियां भी हम पे जाहिर, फिर हम उन पे काम करते हैं। फिर कई दफा हम अपनी लिमिटेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारी जिंदगी के अंदर ये आजमाइशें हमें लिमिट में रहना भी सिखाती है कि हमें किस तरह से अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर खिदमत करनी है। एंड वन मोर थिंग, आजमाइशें हमारे खुदा पर ईमान और कामों में सच्चाई को भी परखती हैं कि हम कितने जो है वो ट्रूली काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस बात को समझना है। नंबर वन जो बात हमने इस वीडियो के अंदर देखी, हमें समझना है तैयारी की क्या अहमियत है, तैयारी का क्या रोल है। और फिर दूसरे नंबर पे तैयारी के लिए पहला टूल जो खुदावंद अनाउंस भी करते हैं, खुदावंद बताते भी हैं, वो है हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइशें। और हमें खुदावंद खुदा से तौफीक मांगनी है, खुदावंद खुदा इन आजमाइशों को हमारी जिंदगी के अंदर इस खिदमत के काम के लिए, तैयारी के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। क्योंकि ये बातें जो है, ये आजमाइशें जो है वो हमें पुख्ता करेंगी और इन आजमाइशों के वसीला से खुदावंद खुदा हमें खिदमत के लिए तैयार करेगा। काश के खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जो है वो दिल के अंदर ये बात डाले और ये जज्बा हमारी जिंदगी में पैदा हो कि हमें खुदावंद के काम के लिए खिदमत से पहले तैयार होना है। और इस तैयारी के लिए कुछ भी हो जाए, हमें इसको रिसीव करना है। ऐसा ना हो कि हम भाग जाएं। खुदाए पाकरू की मिन्नत करेंगे कि खुदाए पाकरू हमारी जिंदगी में मुदाखलत करे। आइए हम दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदावंद खुदा, तेरी ख्वाहिश है कि वो लोग, वो जो तेरी तरफ से बुलाए गए हैं, वो जब इस्तेमाल हों तो इस्तेमाल होने से पहले पूरे तौर पे तैयार हों। और खुदावंद खुदा, जब तूने इन आजमाइशों को, मुसीबतों को खुदावंद खुदा एक टूल के तौर पे एक रहनुमा की जिंदगी के अंदर रखा था कि वो इससे सीखे, तो बख्श देना खुदावंद खुदा, वो सब जो तेरे पाक बुलावे में बुलाए गए हैं खुदावंद, इस तैयारी को रिसीव करने के लिए खुदावंद मुस्तादी के साथ खुदावंद खुदा खड़े रहें, तुझ में कायम रहें, ताकि खुदावंद जब पूरे तौर पे तैयार हों तो खुदावंद उस खालिस सोने की तरह तेरी हुजूरी में पेश हों। और तो खुदावंद तू उनको लायक तौर पे इस्तेमाल करे। इस वक्त में आ, मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।